Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about gene regulation in case of prokaryotes. And this is an introductory video. If I talk about gene regulation, means gene expression is regulated. How this gene expression is regulated and what is the need for. So we will talk about all these points. Now there is a question why gene expression is regulated. जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन रेगुलेट किया जाता है अडेप्टेबिलिटी के लिए. फॉर एग्जांपल हम यहाँ प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स वो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ई कोलाई की, then E. coli has an adaptability to grow by using any one of several types of carbohydrates. For example, glucose, sucrose, galactose, arabinose, lactose, etc. But not all genes are regulated. Here, some genes, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस होने के लिए इन्वायरमेंटल कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती और वे कॉन्टिन्यूसली एक्सप्रेस होते हैं क्योंकि वो ग्रोथ के लिए और अदर वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जांपल राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन्स और टीआरएनए. बट कुछ जीन ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन की वजह से ही एक्सप्रेस होते हैं. उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में किसी ऑर्गेनिज्म की अडेप्टेबिलिटी को, फिटनेस को इंक्रीज़ करने के लिए ही एक्सप्रेस होते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन दैट पर्टिकुलर इन्वायरमेंट. इसलिए उनके एक्सप्रेशन को स्विच किया जाता है और दे आर बीइंग टर्न्ड ऑन एंड ऑफ इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट. नाउ here is the question that what are the advantages of regulation of gene expression in case of prokaryotes. First of all, we are going to talk about adaptability. The adaptability of bacteria and other prokaryotes depend on their ability to turn on and turn off the expression of specific set of genes in response to the specific demand of environment. So it increase their adaptability. Second point is to increase fitness. The expression of a particular gene is turned on when the product of these genes are needed for growth in a given environment. Their expression is turned off when their products are no longer needed for growth in the existing environment. Clearly, the ability of an organism to regulate gene expression in this way will increase its overall fitness, or we can say its ability to grow and leave progeny under a variety of environmental conditions. And third point is to minimize the energy loss. The synthesis of a gene, transcript and translation product require the expenditure of energy. By turning off the expression of genes when their products are no longer needed, an organism can avoid wasting energy and can utilize the conserved energy to synthesize products that maximize the growth rate in existing environment. So these are the adaptations, or we can say these are the advantages of regulation of gene expression in case of prokaryotes. Now there are some terms and points that we need to know before studying the actual concept of gene regulation. First one is कि जीन एक्सप्रेशन जो होता है या जीन जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम रेगुलेट करते हैं डिफरेंट स्टेप्स पे और डिफरेंट लेवल्स पे. फर्स्ट वन इज़ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे. मेन होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही मेनली जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जाता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. बट अदर लेवल्स पे भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है. लाइक mRNA प्रोसेसिंग के दौरान जब mRNA कोडिंग करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, और mRNA टर्नओवर
के टाइम पे, ट्रांसलेशन और एंजाइम फंक्शन के टाइम पे भी जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जाता है। मेनली 2 रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करने के लिए। फर्स्ट होता है रैपिड टर्न ऑन एंड ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये इन्वायरमेंटल चेंजेस की अकॉर्डिंग होता है कि किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड या पर्टिकुलर शुगर प्रेजेंट है एक कल्चर मीडियम में जिसमें एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, तो वो उस एंजाइम को ही सिक्रेट करेगा जो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड को या फिर उस पर्टिकुलर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन कर सके ताकि वो अपने उसको मेटाबोलाइज कर सके। तो ये रेगुलेट किए जाते हैं और इनका ये फर्स्ट मैकेनिज्म होता है उन जीन्स को टर्न ऑन करना, स्विच करना, टर्न ऑन और ऑफ। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही कॉमन होता है क्योंकि ये उनकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज़ करता है। हमें पता ही है कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कराते हैं, तो वो अपनी इस एडेप्टेबिलिटी और इस रेगुलेटरी मैकेनिज्म की वजह से सर्वाइव कर पाते हैं। एंड सेकेंड वन इज़ रीप्रोग्राम सर्किट ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो एक इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे पहले हमारी टी सेल्स एक्टिवेट होती है, फिर बी सेल्स एक्टिवेट होती है, फिर एंटीबॉडी प्लाज्मा सेल्स एक्टिवेट होती हैं, तो वो एक कैस्केड ऑफ इवेंट को ट्रिगर कर देता है। तो उसमें क्या होता है, एक जीन के बाद दूसरा जीन सीक्रेट होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है उसको। तो ये एक सीरीज ऑफ एक सेट ऑफ जीन्स को ये क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो ये रीप्रोग्राम सर्किट होता है जीन एक्सप्रेशन का। एज आई टॉक बिफोर, 2 टाइप्स के जीन होते हैं जो एक जीन होते हैं जो रेगुलेट नहीं किए जाते, उन जीन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स और हाउसकीपिंग जीन्स, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली हमारी वाइटल एक्टिविटीज़ के लिए फंक्शन करते रहते हैं या फिर हमारी ग्रोथ के लिए फंक्शन करते रहते हैं, इसलिए हम उन्हें हाउसकीपिंग जीन कहते हैं। उनको किसी रेगुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हमारे सर्वाइवल के लिए या हमारी बेसिक नीड्स के लिए ज़रूरी ही होते हैं, जैसे tRNA, rRNA, राइबोसोमल प्रोटीन्स और RNA पॉलीमरेज एक्सेट्रा। एंड कुछ जीन होते हैं इंड्यूसिबल जीन, जिनके एक्सप्रेशन को किसी कंडीशन में ही इंड्यूस्ड किया जाता है कि भाई अब ये कंडीशन आ गई है कि ये अमाइनो एसिड आ गया है कल्चर मीडिया में, तो मेरे को ये कंज्यूम करना है, तो मेरे को ये पर्टिकुलर एंजाइम सीक्रेट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आई कुड नॉट टेक दिस दैट अमाइनो एसिड एंड कुडंट मेटाबोलाइज। सो एक्सप्रेशन इन जीन्स का रेगुलेट किया जाता है एंड देयर प्रोडक्ट जब वो इंड्यूस्ड करते हैं, इसलिए उनके प्रोडक्ट को जो होता है इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हैं। एंड द सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन आर नोन एज इंड्यूसर्स। ये मेनली कैटाबोलिक एंजाइम होते हैं जो किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन क्या है, किसी जीन के एक्सप्रेशन को टर्न ऑफ करना, जिसका एंड एक जीन जिसका एक्सप्रेशन टर्न ऑफ किया जाता है उसको रिप्रेस्ड कहते हैं, और जब ये एक्सप्रेस्ड होता है तो उसको डिप्रेस्ड और एक्टिवेटेड जीन कहते हैं। जो एनाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं उन्हीं को रिप्रेस किया जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल एक कल्चर मीडियम में एक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है और उसमें उस कल्चर मीडिया में ग्लूकोज ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको कोई भी एंजाइम सीक्रेट करने की ज़रूरत नहीं है जो उस सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन कर सके, क्योंकि वो डायरेक्टली ग्लूकोज को मेटाबोलाइज कर सकता है। तो इन ऐसे केसेस में ये जो एनाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं इनको रिप्रेस किया जाता है, और ये रिप्रेशन होता है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे। रिप्रेशन और फीडबैक इनहिबिशन में डिफरेंस होता है, क्योंकि फीडबैक इनहिबिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोसेस का, वो फर्स्ट प्रोडक्ट को जाके बाइंड कर देता है और उस सिंथेटिक पाथवे को रोक देता है वहीं पे। पर ये क्या होता है, ये एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, उस एंजाइम की एक्टिविटी को, ना कि उसकी सिंथेसिस को। बट जो रिप्रेशन होता है वो किसी भी एंजाइम की सिंथेसिस को अफेक्ट करता है, ना कि उसकी एक्टिविटी को। उसकी एक्टिविटी, उस पर्टिकुलर एंजाइम की एक्टिविटी तो सेम ही रहेगी, बट उसका सिंथेसिस रुक जाएगा कि भाई वो और प्रोड्यूस नहीं होएगा।
Now to explain these two regulatory mechanism, जैकोब एंड मोनोद प्रपोज द ओपरोन मॉडल। ये ओपरोन मॉडल जो उन्होंने दिया ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जीन रेगुलेट किए जाते हैं ई कोलाई में, जो ऐसे एंजाइम को इनकोड करेंगे जो लैक्टोज को मेटाबोलाइज कर सकें। और जो ये ओपरोन मॉडल है ये पूरी एक कॉन्टिग्यूस यूनिट होती है जिसमें स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं। अगर हम लैक ओपरोन की बात करें तो इसमें हमारे जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन होते हैं। इनको हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। एंड ऑपरेटर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, और दो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इसको हम दो जो कंट्रोलिंग एलिमेंट्स हैं इनको रेगुलेटर या रिप्रेशर जीन बोलते हैं, जो रेगुलेटरी सब्सटेंस सीक्रेट करेंगे, या फिर रिप्रेसर जीन जो कुछ ऐसे प्रोटीन सीक्रेट करेंगे जो रिप्रेस कर देंगे सिंथेसिस किसकी, इन स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन जो है उसको रोक देंगे। और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर रेगुलेट करता है एक्सप्रेशन स्ट्रक्चरल जीन का, और ऑपरेटर जो होता है वो प्रमोटर के बीच में और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है। यहाँ पे प्रमोटर है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रमोटर प्रेजेंट होता है। इस प्रमोटर से आके रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा। अगर यहाँ पे आके रिप्रेसर बाइंड कर जाएगा तो आरएनए जो पॉलीमरेज होता है वो प्रमोटर साइड पे बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रुक जाता है, उनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाता है। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इन एन ओपनिंग इज डिटरमाइंड बाय प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इफेक्टर मॉलिक्यूल। मीन्स अगर इफेक्टर मॉलिक्यूल्स इफेक्टर मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकता है, अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं, वे जाके जब रिप्रेसर मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएंगे तो ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर साइड पे बाइंड नहीं करेगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज ईजिली प्रमोटर पे बाइंड कर सकता है और इन स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। Here is the difference between inducible operon versus repressible operon। जो हमारा इंड्यूसिबल ओपरोन होता है वो हमारा लैक ओपरोन होता है, और जो हमारा रिप्रेसिबल ओपरोन होता है वो हमारा ट्रिप ओपरोन होता है, ट्रिप्टोफैन ओपरोन, जिसमें हम ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस करते हैं। तो जो इंड्यूसिबल ओपरोन होता है उसको इंड्यूस्ड करना पड़ता है। इसमें जो फ्री रिप्रेसर होता है वो रिप्रेसर ऑपरेटर साइड से बाइंड हो जाता है और आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है बाइंड करने से प्रमोटर पे, और वो प्रमोटर पे अगर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाता तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। और जब ये रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स बाइंड होता है किसी इफेक्टर मॉलिक्यूल से, जैसे अमाइनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट से, तो ये बाइंड नहीं कर पाता इस ऑपरेटर साइड पे, और जब रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बाइंड नहीं कर पाता तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ईजिली प्रमोटर पे बाइंड हो जाता है और स्ट्रक्चरल जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है। तो दिस इंड्यूसिबल ओपरोन के एक्सप्रेशन के लिए हमें किसी अफेक्टर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है जिसे हम इंड्यूसर कहते हैं। तो जो भी ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है इन्वायरमेंट में या कल्चर मीडिया में, तभी इस ओपरोन का एक्सप्रेशन पॉसिबल होता है, इसलिए इसको हम इंड्यूसिबल ओपरोन बोलते हैं। बट रिप्रेसिबल ओपरोन के केस में फ्री रिप्रेसर बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर पे, ओनली द रिप्रेसर इफेक्टर मॉलिक्यूल को रिप्रेसर ही बाइंड कर सकता है, इसलिए इसको हम इंड्यूसिबल ओपरोन ना कह के रिप्रेसिबल ओपरोन कहते हैं। दिस पिक्चर शोज द structural component of operon model or components of operon model. Here you can see this is the promoter regulatory gene जो प्रमोटर को रेगुलेट करेंगे, ये रेगुलेटरी जीन है। यहाँ पे प्रमोटर है ओपरोन के लिए और ये ऑपरेटर है प्रमोटर पे, जहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, एंड ऑपरेटर है जिस पे हमारा रिप्रेसर बाइंड करेगा। ये हमारे 3 स्ट्रक्चरल जीन है जो डिफरेंट एंजाइम सीक्रेट करेंगे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज, बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक्सेट्रा। और ये जो रेगुलेटरी जीन है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जिसकी वजह से हमारा रिप्रेशर प्रोड्यूस होगा, और ये रिप्रेशर जाके अगर कोई इंड्यूसिबल मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रिप्रेशर है ये बाइंड कर जाएगा प्रमोटर पे, और आरएनए पॉलीमरेज फिर हमारा जो प्रमोटर पे बाइंड नहीं
करेगा और इसकी वजह से इन स्ट्रक्चरल जीन्स का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो रुक जाएगा। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है ओप्रोन मॉडल का, जो सेम ही रहता है मोस्टली, बस जीन चेंज होते हैं ओप्रोन में और लैक ओप्रोन में। ये पिक्चर हमारी ओप्रोन मॉडल के इंडक्शन को डिपिक्ट कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पे जो हमारा रिप्रेसर है वो सिंथेसाइज होता है और ये रिप्रेसर है ऑपरेटर साइड पे जाके बाइंड हो जाता है। अगर ये ऑपरेटर साइड पे बाइंड हो जाता है तो हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइड पे बाइंड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इन स्ट्रक्चरल जीन का जो एक्सप्रेशन है वो रुक जाता है। बट अगेन इसमें दिखा रखा है कि भाई यहाँ पे जो अगर इंड्यूसर जो इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होंगे, अमाइनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट जो भी होंगे, जो सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में, कल्चर मीडियम में, वो इंड्यूसर अगर हम देते हैं तो जो हमारा रिप्रेसर है उस रिप्रेसर से जाके ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल बाइंड हो जाते हैं और इसकी एक्टिविटी को, इस रिप्रेसर की एक्टिविटी को वो सुप्रेस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बाइंड नहीं कर पाता, प्रमोटर साइड पे बाइंड नहीं कर पाता। इस वजह से जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो ईजिली हमारी प्रमोटर साइड पे बाइंड कर जाता है। जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होएगा तो ईजिली हमारा ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा इन स्ट्रक्चरल जीन का और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम सिक्रेट हो जाएंगे। और here you can see this is the RNA polymerase and it synthesizes different types of polypeptide, 3 types of polypeptide, because there was 3 types of gene. So it is all about the induction of Opron model. This diagram shows you the repressible Opron. In this case repressor can only bind to operator. repressor तभी bind कर पाता है इस दिस operator साइड पे जब वहाँ पे कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल उससे बाइंड होता है ऑलरेडी, मीन्स कि जो ये रिप्रेसर है वो को रिप्रेसर स्टेट में होता है, तभी बाइंड कर पाता है। इन इट्स एब्सेंट ऑपरेशन, और जो अगर ये इफेक्टर मॉलिक्यूल्स होता है उसकी एब्सेंस में ऑपरेटर इज़ फ्री, परमिटिंग आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड एट एडजॉइनिंग प्रमोटर। और ये जाके हमारा तो अगर यहाँ पे कोई इफेक्ट मॉलिक्यूल प्रेजेंट तो यहाँ पे हमारा जो प्रमोटर साइट है यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इजीली बाइंड कर सकता है और हमारी पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस कर सकता है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन विल produced because there is the presence of 3 genes. But if there is a presence of effector molecules or co-repressor is added, then this repressor will bind this with this co-repressor molecule and it will suppress the activity of operator और ये जाके ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से आरएनए पॉलीमरेज है वो ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाता। ये आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पा रहा है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड कर पा रहा ऑपरेटर साइट पे, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सप्रेशन है इन स्ट्रक्चरल जीन का वो रुक जाता है और कोई पॉलीपेप्टाइड चेन सिंथेसाइज नहीं होती। तो ये जो पिक्चर है ये हमें शो कर रही है कि रिप्रेसर ओप्रोन कैसे वर्क करता है। यहाँ पे अगर कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है और वो इफेक्टर मॉलिक्यूल रिप्रेसर से बाइंड नहीं है तो ये ऑपरेटर साइट पे बाइंड करके इस आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग एक्टिविटी को इनहिबिट नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे इंड्यूसिबल ओपरेन में ऐसा नहीं था, इसको इफेक्टर मॉलिक्यूल की जरूरत थी इंड्यूस करने के लिए, ना कि रिप्रेस करने के लिए, इसलिए हम इसको इंड्यूसिबल मॉलिक्यूल बोलते हैं। पर यहाँ पे ये इफेक्टर मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो वो ऑपरेटर साइट को बाइंड कर जाता है और आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटीज़ को सुप्रेस कर देता है, तो इसलिए हम इसको रिप्रेसर मॉलिक्यूल बोलते हैं। So this video was all about the introductory section of gene regulation in case of prokaryotes. If you like this, then please do like, share and subscribe. Thank you so much.